pranic healing breathing program. My teachers enjoyed very much. And I requested you to have it once again. So I'm happy to know you're conducting it once again. So a brief biodata I would like to read of Swatantra Kumar. He's a great man. He has done his engineering, mechanical engineering from Kurukshetra University in 1978. After that, he joined in Hindustan Petroleum Corporation. He worked from 79 to 96 over there. After that, the growth that it started in his life, and it's no end to it, is still growing. I can see him growing. I know him for last 10 years. In 96, he joined as a president at Mafatlal Lubricant, worked there till 2000. From 2000 to 2003, he worked as a managing director in Grovel Softtech Limited, Mumbai. And then after 2003, he had made a sick company live. That's his capacity. And he's a marketing guy. He can वो सैंड को भी सोना बेच देंगे, वो ऐसे मार्केटिंग गाय है. That's his power of speaking. I'm trying to mean that he can really convince people, and he has taken some sessions with my students long back. It was wonderful. And from 2003, he is the director of Abitech Energycon Limited, Mumbai. And he is leading this company. He has done a lot of international travels. He has visited about 40 countries marketing his products. Basically, he's dealing with petroleum fuels and solid fuels, not only in India, but created an export market in 25 countries. He has his own IT company as well, which he started in 2000. And not only this, to add to his biodata, as I said that he's a teacher by heart. He has been taking lectures in NMIS, SP Jain, and all, and including my college. He has come and taken sessions. He has taught in NM also. Basically, his forte of speaking is in international marketing process, pricing or as marketing tool, managing changes, selling techniques, personality development, and many more. He also has he can make people teach how to communicate, because communication is a very important part in today's life. And last but not the least, he's very concerned about the health, and he knows a lot of health issues, how to deal with them. He's very systematic, very sincere, regularly doing exercises, pranayams. I happened to call him to my college, but either he was busy or I could not make it time. And I'm very sure this COVID-19 has helped us to give platform to such type of people, where I think if I would have called you in my college, hardly at the time 100 people would have sat over here. But today we can see that how the number of people would increase and how widespread it can go. So over to you, Swatantra Kumar. And I'm very sure at the end of the session, all will go with full heart to take care of their heart and body. Thank you very much. Thank you, Dr. Chaitali. I needed this. आपने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, लेकिन मैंने शॉर्ट किया. ये किसी भी स्पीकर के लिए इस तरह का एक बूस्ट होना बहुत जरूरी होता है. जैसे कलाकार जब स्टेज पे जाते हैं तो उनको तालियां बजती है तो उनका हौसला बढ़ता है. So nice of you. Thank you very much. एक बार आप सभी को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सलाम, सत श्री अकाल. एंड आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. मैं अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोग के साथ. जी हाँ. जैसा मैंने कहा कि ये जो 3 ट्रेनिंग का जो सेशन है, 3 सेशन का जो ये सीरीज है हमारा ट्रेनिंग का, दैट इज फॉर योर हेल्थ इज योर वेल्थ. क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारी सेहत से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम जिंदगी के शुरू के 20 साल से लेकर 50 साल तक हम पैसे कमाने में लगते हैं, ओहदा कमाने में, शोहरत में. तब तक हम जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं. लेकिन कुछ कारणवश इतनी बीमारियां बीच में ले लेते हैं कि उसके बाद हम सारा पैसा उन बीमारियों पे खर्चा करते हैं. आज जब मैं देखता हूँ पेपर में ऐड, टीवी में ऐड कि घर पे दवाई जाइए, ये कीजिए, इतना डिस्काउंट, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है. दोस्तों, हम चर्चा करेंगे मंडे को कि वो हेल्दी व्यक्ति कौन है. लेकिन आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारे जिंदगी में हमारी सेहत से ज्यादा
किस्मत वाला या धनी कोई नहीं है। और मैं अपने आप को बिल गेट्स के कैटेगरी में रखता हूँ। मैं बहुत धनी हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा हेल्थ है। तो आपको इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा मैंने कहा कि हम लोग क्लीन एयर, जल चिकित्सा एंड जो फूड है हमारा स्वास्थ्य का, उसका उस पर हम लोग बात करेंगे। स्वस्थ शरीर का राज, संतुलित आहार। तो कल हमने परसों जो जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको याद होगा कि ये 100 साल का हमने क्या कहा था कि हम लोग को 100 साल हंसी खुशी जीना है, सेहत पूर्वक जीना है। और उसके लिए हमें टारगेट बनानी है कि मुझे अपना 100वां साल का बर्थडे केक काटना है, खड़े होके, बिना कुर्सी पे और बिना किसी के सहायता के। और उसके लिए जो 3 चीज है वो हमने पहले चीज ब्रीदिंग की फ्यूल ऑक्सीजन। एंड वो हमने देखा और मुझे खुशी है कि बहुत सारे हमारे दोस्तों ने शुरू कर दिया है डीप ब्रीदिंग एंड प्राणिक ब्रीदिंग। प्लीज कीप इट अप। आप देखेंगे कि आपकी सेहत में, आपकी लाइफ में क्या चमत्कारिक परिवर्तन होने वाला है। दूसरा जो है, आज जो है दूसरा सेशन है वो पानी का। हवा, पानी और फिर भोजन। देखिए, हवा के बिना तो हम रह नहीं सकते, 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा नहीं। पानी, इस पे हम ध्यान नहीं देते। आपको आश्चर्य होगा कि पानी, हालांकि इसको हमने वाटर थेरेपी कहा है, लेकिन कोई थेरेपी नहीं है। एक नाम, एक अट्रैक्शन दिया है मैंने नाम करके, जिसको या इसको जल चिकित्सा कहते हैं। कोई चिकित्सा नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं, कोई शल्य चिकित्सा नहीं, ऑपरेशन नहीं है, बट दिस इज ब्यूटीफुल वाटर थेरेपी जो कि हम आप कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूंगा कि जो परसों के सेशन में जो मैंने ब्रीदिंग पे बताया था वो सब मैं खुद करता हूँ, मैं स्वयं करता हूँ और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वाटर थेरेपी मैं स्वयं कर रहा हूँ, वो मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ। तो मैं कोई किताब से पढ़ के, किसी वीडियो देख के मैं इसमें नहीं डाला हूँ कि ये करना चाहिए। हाँ, किताब से और इंटरनेट से मैंने कुछ फोटोज लिए हैं, कुछ ग्राफ्स लिए हैं, ऑल दैट। लेकिन एक एक रिकमेंडेशन जो है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सभी को मालूम है कि हमारे पृथ्वी के सरफेस में 70-71% वाटर है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा या आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में भी 70% वाटर, क्योंकि हम इस पृथ्वी से ही बने हैं। 5 तत्व है जिसमें पृथ्वी एक मेन है। और अगर आप देखेंगे तो हमारे शरीर में बोन को छोड़ करके सभी में 75% से 80-85% की वाटर है। शरीर में पानी कितना है, इससे पता चलता है कि हमारे शरीर को पानी की कितनी आवश्यकता है। और ये आवश्यकता मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। डॉक्टर फेरेदीन बैटमैन, इनको डॉक्टर बैटमैन कहा जाता है, ये मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा। इन्होंने किताब लिखा है वाटर क्योर्स ड्रग्स किल। वाटर क्योर्स ड्रग किल, इसको देखिए, इस किताब की हेडिंग को। डॉक्टर बैटमैन जो थे, फेरेदीन, ये ही वाज बोर्न इन ईरान। He went to UK, did his doctorate, came back. He was a big doctor. Then जब revolution हुआ 70s में, he was jailed. And in the jail, there were thousands of कैदी जिनको बीमारियां थी, और इन्होंने पानी से चिकित्सा करना शुरू किया। यहाँ तक कि पेप्टिक अल्सर को भी वो ठीक करते थे। और इन्होंने पानी पे इतनी किताबें लिखी हैं, मैंने कोई पढ़ी नहीं किताब, लेकिन इनके बारे में जानता हूँ। ये मानना है कि अगर आप पानी सही तरीके से पीते हैं, सही क्वांटिटी में, तो 80% बीमारियां आपको कभी होंगी ही नहीं। ये एक कटु सत्य है, या जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। जल चिकित्सा से मतलब क्या क्या बीमारियां दूर हो सकती, मैं आपको इसको फास्ट जाऊंगा, मुझे इस पे बात ही नहीं करना, सिर्फ आप देखते जाइए क्या क्या बीमारियां हैं। ऐसे ऐसे नाम है जिसका मैं ठीक से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पा सकता। रियूमेटिज्म, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, भगवान न करे मुझे किसी दवाई का नाम याद रहे या कोई बीमारी नाम याद रहे। ये सारी बीमारियां इससे दूर क्योर की जा सकती है, दूर तो होती हैं, क्योर भी की जा सकती हैं। ये देखिए, लुकेमिया का मुझे नहीं मालूम है, बट रिसर्च से पाया गया है कि ये सारी बीमारियां जो है पानी से ठीक की जा सकती है। अब अगर आप सही तरीके से सही पानी पिएंगे और सही टाइम पे पानी पिएंगे,
तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 80% बीमारियां आपके पास आएगी नहीं, और जितनी बीमारियां हैं वो काफी आपसे दूर चली जाएंगी। तो लेट्स सी, मैं शुरू करता हूं। अगेन आई रिपीट फ्रेंड्स, आई एम शेयरिंग विथ यू व्हाट आई एम फॉलोइंग डे बाय डे, मंथ टिल मंथ, सिंस ईयर्स। मैं पहली बार पानी थेरेपी शुरू की थी 1996 में एक किताब पढ़ करके, और मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, और जब ये मैंने शुरू किया तो उससे इमीडिएटली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म हो गई। 1996 एंड वी आर इन 2000। सो जब आप सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले अपने भगवान का, अल्लाह का, ईशा का, गॉड का, वाहेगुरु का प्रणाम कीजिए, उनको याद करके, एंड आई स्ट्रेट वे हिट द किचन। आई डोंट आस्क माय वाइफ टू डू एनीथिंग, आई गो टू द किचन, भगवान एक मंदिर, उनको प्रणाम करता हूँ, और बर्तन में 1 लीटर पानी में डालता हूँ और खुद गर्म करता हूँ, और गिलास में मैं बताऊंगा मटर के दाने से थोड़ा ज्यादा मैं हल्दी डालता हूँ, और 1 लीटर पानी बैठ करके पीता हूँ, और जब तक पानी खत्म होता है उसके बाद सीधा मैं दरवाजे पे जाता हूँ टॉयलेट के। सो पहला चीज आप कीजिए, जब आप सुबह में आप होगा कि पत्नी को मत कहिए कि बेगम, मैडम आप जाके करो, खुद आप कीजिए, आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। और पीजिए पानी, एंड देन 3-4 गिलास। शुरू में आप 3 गिलास नहीं पी सकते तो 1 से शुरू कीजिए, 2 गिलास से शुरू कीजिए, 3 गिलास से शुरू कीजिए, 4। मैंने शुरू किया था 1.25 लीटर से। दैट इज व्हाट दे से, यू स्टार्ट विथ 1.25 लीटर, स्ट्रेट वे यू गो टू द वॉशरूम। अब देखिए, विदाउट वॉशिंग योर माउथ, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। क्या है कि जब हम रात में ब्रश करके सोते हैं तो रात भर में हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, और ये सलाइवा बहुत ही गुणकारी है, चमत्कारिक है, इसमें एंटीसेप्टिक रहता है। तो आप बिना मुंह धोए आप ये पानी पीजिए तो सारा का सारा सलाइवा आपके पेट के अंदर चला जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा ख्याल रखें कि हमेशा कोई भी खाना खाते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो उसके 30-40 मिनट पहले 1 गिलास पानी पी लें, नॉर्मल पानी पिए। अगर आप वार्म वाटर पी सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो नॉर्मल पानी पीजिए। और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद 1 से 2 गिलास पानी पीजिए, हॉट वाटर, लुकवार्म, हॉट। जितना गर्म पानी पिएंगे उतना अच्छा रहेगा। और खाना खाते समय तो आप पानी पीजिए नहीं, इसका मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि जब हम खाना खाते हैं तो पेट में जठाग्नि होती है, बर्निंग होती है, खाने का कंबशन होता है, शुरू होता है, और कंबशन में ऊर्जा चाहिए, और उसमें अगर आप पानी डाल दें तो एक तो वो ठंडा हो गया, दूसरा जब मिलिंग करते हैं किसी को तो उसमें ज्यादा पानी डालने से मिलिंग नहीं हो पाता है, वो थोड़ा सा अगर हल्का सा भीगा हो तो मिलिंग, उसकी चर्निंग अच्छी होती है। तो कभी भी खाते समय पानी मत पीजिए। कोशिश कीजिए दिन में और रात में अगर स्नान करते हैं तो 1 घंटा, स्नान करने के 1 घंटा पहले गिलास पीजिए पानी, एंड बिफोर गोइंग टू बेड 1 घंटा, 1.25 घंटा पहले आप पानी पीजिए सोने के पहले। एंड दिन में जब भी आपको प्यास लगे प्लीज टेक वाटर। तो ये जो है इसको आप याद करके रखिए, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी 80% वाटर थेरेपी इसी में हो गई। अगेन रिपीट, सुबह में उठते ही भगवान को प्रणाम करके गर्म पानी कीजिए, थोड़ा उसमें हल्दी डालिए, बैठ करके पीजिए, एंड 3 से 4 गिलास, 1 लीटर से 1.25 लीटर। खाना खाने से 40-50 मिनट पहले, 30 मिनट पहले, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद हॉट वाटर। दिन में खाते समय तो पानी प्लीज मत पीजिए, पानी की जरूरत नहीं होती है, आपकी एक आदत है, आप कीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा मेरे दोस्तों को जो मेरे कहने पे उन्हें खाते समय पानी पीना बंद कर दिया। देन ये आप देख लीजिए, जब भी है प्यास लगे तो सुबह खाली पेट हल्दी पानी पीने। आज देखिए आजकल व्हाट्सएप तो बहुत बड़ा एक हमारे पास जानकारी का एक साधन है, उसमें ज्यादा गलत जानकारियां होती हैं, लेकिन आप देखेंगे हल्दी के फायदे देखेंगे, अमेजिंग क्वालिटीज है। मैं क्या क्या फायदे हैं उसको मैं पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हल्दी डालिए पानी में और पीजिए, आपको चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। नींबू डालिए। देखिए मैं खाने पे जाऊंगा, भोजन पे तो अल्कलाइन फूड की बात करूंगा, लेकिन शरीर में अल्कलिनिटी ज्यादा जरूरत है। आपको याद है हमने देखा था ऑक्सीजन में
कि डॉक्टर ओटो वारबर्ग ने जब बताया था 1931 में, फाइंड आउट किया था रीजन फॉर कैंसर, उसमें दो ही चीज थे, एक था लैक ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा था एसिडिटी इन द बॉडी। और ये नींबू जो है एक एसिड है, लेकिन आफ्टर मेटाबॉलिज्म ये पूरा का पूरा बेस हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है। तो सुबह में आधा नींबू, एक नींबू अगर आप पिएंगे तो आपकी लाइफ की परिवर्तन बहुत हो जाएगी। नाउ दिन में कितना पानी पीना चाहिए? देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका कोई सही एक जवाब नहीं है। जैसा शरीर जैसा मौसम, अगर मैं नॉर्थ के लोगों को बोलूंगा विंटर में आप 14 गिलास पानी पीजिए तो हम भी नहीं पी पाएंगे। सो आप देखिए 3 से 4 लीटर पानी जो है आप एक अंदाज रखिए आपको पीना चाहिए 18 से 60 साल के बीच में। 60 साल से ज्यादा वालों को 4 से ज्यादा लीटर पानी पीना चाहिए। ये एक चार्ट है, इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें इसमें दिखाया है कि जो जो उम्र बढ़ती जाती है पानी ज्यादा पीना चाहिए। और खासकर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो जितना आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं उतना आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए। सो जब एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, प्लीज कैरी वाटर, क्योंकि आपकी डिहाइड्रेशन होती है, उस समय हाइड्रेशन करना जरूरी होता है, पानी पीना जरूरी होता है। अब मैं एक बहुत अच्छे मुद्दे पे आता हूं। देखिए, आपको आश्चर्य होगा, आपको लगेगा क्या 96% लोग दुनिया में गलत तरीके से पानी पीते हैं। दोस्तों, ये भी मेरे गुरु मिस्टर विनोद हरितवाल ने मुझे बताया था आज से 12 साल पहले। और उसके बाद से 100% नहीं, लेकिन 99% मैं सही तरीके से पानी पीता हूं। आप सोचिए क्या सही तरीका है। खड़े होकर पानी पीने से बहुत ही नुकसान है। कभी भी खड़े होकर पानी मत पीजिए, आपकी किडनी, आपके वाटर, जो स्टमक वॉल्स हैं, बहुत सारी आपको परेशानियां होंगी। क्या क्या तकलीफें होंगे देखिए। अर्थराइटिस होता है, घुटने में प्रॉब्लम होती है, स्टमक वॉल पर पानी झकता है, आपकी प्यास नहीं बुझती है, इंडिजेशन होता है, किडनी के फंक्शन पे प्रॉब्लम होती है, हार्ट बर्न एंड अल्सर्स होते हैं, आपके बॉडी को ये अब्सॉर्ब नहीं करने देता है न्यूट्रिएंट्स ऑफ वाटर, बोन डिजेनरेशन होता है, रॉन्ग रिस्पॉन्स टू द नर्वस सिस्टम होता है, एंड डजंट हेल्प यू इन डाइल्यूटिंग द एसिड लेवल प्रेजेंट इन द बॉडी। मतलब कि नुकसान ही नुकसान है। कहने का मतलब दोस्तों ये कि आप हमेशा बैठ करके पीजिए और घूट घूट करके पीजिए, दोनों, बैठकर और घूट घूट करके। आयुर्वेद कहता है कि जो व्यक्ति बैठकर और घूट घूट कर पानी पीता है उसे कभी भी पेट का रोग, किडनी, लीवर, कब्ज, हार्ट जैसी बीमारियां हो ही नहीं सकती। और हमारी पेट अगर सही है तो 80% बीमारियां हमारे साथ आ ही नहीं सकती, ये आप लोग को मालूम है ना। सो बैठ के पानी पीजिए, घूट घूट कर पानी, बैठकर घूट को। हाँ, जब आप एक्सरसाइज करते, जब मैं जिम में रहता हूँ या मैं जब गार्डन में दौड़ता हूँ उसके बाद क्रंचिंग करता हूँ, उस समय खड़ा होकर पीता हूँ, वहां बैठ के नहीं पी सकते, राइट। सो एक्सेप्शन टू द रूल्स ऑलवेज हैं। तो लेकिन जहां तक आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, कार में हैं, बाहर, आप बैठ के, कार में तो खैर आप बैठ के ही पिएंगे, तो बैठकर ही पीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। कुछ लोग कहते हैं यार पानी पिया नहीं जाता है। हर एक प्रदेश में पानी की टेस्ट अलग है। मुझे याद है 1985 में, मतलब गुजरात के लोग या अहमदाबाद के लोग इसको बुरा ना माने, वहां के पानी में सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा है, अलग ही टेस्ट, राइट। और कहीं आप जाएंगे बांग्लादेश में आयरन ज्यादा है। तो पानी का टेस्ट हर एक प्रदेश में अलग अलग होता है। आप इसको थोड़ा सा पैसा, एक पिंच ऑफ मनी ऐड करके आप इसको टेस्टी कर सकते हैं। पुदीना का पत्ता पानी में डाल दीजिए, जग में या वाटर जार में। देखिए, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है, जेंटलमैन एंड लेडीज, मैं ये जार दिखा रहा हूं, आप देखिए, फल को काट के डाल दीजिए, रात भर रहने दीजिए, दिन भर पीते रहिए। आप देख रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो लोग वाटर प्यूरिफायर से लेते हैं वो ये पानी को टेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, वो प्यूरिफायर का पानी पीना नहीं चाहिए, उसमें बाद में आऊंगा। तो नहीं कुछ तो कम से कम 2 नींबू काट के डाल दीजिए, या जब ऑरेंज का महीना ऑरेंज डाल दीजिए, आम का महीना आम, जो चीज हो, लताम, जो चीज हो डाल दीजिए, पुदीना डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, पीते रहिए और बाद में इसको आप फेंक दीजिए या कंज्यूम कर दीजिए। पानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एंड नीचे में आप देखते रहिए, एक बार आता है कि योर हेल्थ इज योर वेल्थ,
एंड दूसरे में कैप्शन है हेल्थ इज योर हैप्पीनेस. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू आर हेल्दी यू आर wealthy, and if you are wealthy you are happy. So please do this. ये एक बहुत मुद्दा है जिसमें मेरे बहुत सारे दोस्त नाराज हो जाएंगे कि स्वतंत्र